joining my class. So let us take first in physics. Our topic is important physical quantities. We are discussing about important physical quantities. क्या होती है ये फिजिकल क्वांटिटीज? ये आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया गया था अच्छी तरह से, और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया था. You know, fundamental quantities, mass, length and time is there, and their unit is kilogram, meter and second. Okay, as you know, mass has unit kg, length meter and time second. Okay, but after that हमने कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था. You know, ड्राइव्ड क्वांटिटीज. Which type of quantities is this? These are those quantities which are derived by using fundamental quantities. By using fundamental quantity means if we are using mass, length and time in these quantities, then these type of quantities is called derived quantities. Okay, basically दो ही ये फिजिकल क्वांटिटीज की ही दो टाइप है. वन ऑफ फंडामेंटल एंड अदर ऑफ derived. इसके अंदर फर्स्टली आपने क्या लिया था? एरिया. क्या लिया था? एरिया. इन डिफरेंट मैनर you have to study all these things. You know what is area? What is the basic formula for this? Length into breadth. And by using this formula, you can derive the unit of this also, because you know very well length. Length is a fundamental quantity and its unit is meter. Put here meter and breadth. Breadth is also the same thing of length, circumference, perimeter. All these are showing distance. And you have to take instead of length and breadth, or you can measure length and breadth in terms of meter. Okay, why meter is there, not centimeter, kilometer is there? Because we are using in this MKS system. M for meter, K for kilogram, and you know very well there's the meaning of S is second. So length, breadth, both are calculating in meters, and by this you can take each unit meters here. But this is the unit of area. Now what is the dimension for area? If you want to take its dimension, area dimension, then you have to put instead of meter length. Here mass has unit kg and its dimension is capital N. Length has unit meter and dimension is capital N. And time has unit second, but dimension is capital T. Then you have to write this meter square in this way. If you want to convert this unit in dimension, then you can write this meter square like this, L2. But this is the dimension of area. Dimension of area. Now, second formula is volume. Length into breadth into height, as you know very well. Volume has formula length into breadth into height. You can write, you can derive its unit like this. Length in meter, breadth in meter, height is also again in meter. And by these three, we get meter cube. Meter cube is the unit of volume. But how will you convert this meter cube into dimension? This unit into dimension, this is the unit of volume. But when you want to take this dimension, then you have to put instead
instead of meter, capital L. If you put capital L instead of meter, power 3, its pronunciation is L3. Okay, so L3 is the dimension of volume. This is the dimension of volume. In this way, you can derive all the units and dimension for every formula in physics. After that, area volume. Very, very important thing is this density. Density has formula mass upon volume. Mass upon volume. Now, what is the unit of mass? The unit of mass is kg. Unit of mass is kg. And the unit of volume is meter cube. From there you can see. Now, simplify it by taking the denominator part into numerator. Then this becomes kg meter minus 3. Kg meter raised to the power minus 3. Now, convert this unit into dimension. How? Instead of kg, you have to put capital M. Instead of small m, you have to put capital L, and then you can write this unit in this way in terms of dimension. In terms of dimension. One more thing is there. Density is a very, very important role in physics, by which Archimedes' principle you know about Archimedes' principle, by which a body sink or float. How a body sink or floats in water. These type of things we can be explained by this stuff, by density. So look at this formula, mass upon volume. This is very, very important for you. Now the next one. After density, speed is there. You know very well, speed has the formula distance upon time. Okay, distance upon time. Speed has the formula distance upon time. Distance is there, distance. And which type of time is there? Time interval, or you can say time taken. Time taken or distance. This type of distance is this cover distance. Okay. Now, how will you calculate distance? What is the unit of distance? Meter. Time taken, second. And simplify it by taking the denominator part into numerator part. Meter per second, meter second inverse, you can write in this way, this term. Meter per second. You can write this meter per second in this way or in this way also. No doubt is there? Okay. Now, if you want to convert this unit into dimension, then you have to choose this one only. You have to choose this one unit. Now, convert meter second inverse into dimension. For meter, capital L is there. For meter, capital L is there. For second, capital T is there. And the power is minus 1. So, LT minus 1 is the dimension of speed. Like this, you can now determine the dimension and unit of velocity also. Velocity has the formula displacement upon time. Displacement upon time. Okay. Displacement. Displacement also has the unit meter, and time taken, you know very well, its unit is second.
Now write this unit in this way, intersecond inverse, and you get the same dimension as speed. So speed and velocity has the same unit and same dimension. There is no doubt. But there is a little difference in between distance and displacement. And what kind of difference is this? This is a scalar quantity. Scalar quantity. And this one is a vector quantity. Vector quantity. And now, what is the meaning of scalar and vector? Is scalar, vector. Scalar are those quantities. Scalar quantities are those quantities which have magnitude but no fixed direction. But not fixed direction. But vector are those quantities which have magnitude as well as fixed, or you can say particular direction. Fixed direction. Now, what is magnitude and what is fixed direction? Let us take an example. Suppose you have to go from this point to this point. You have to go from point A to point B. So, how many ways you can take in this situation? When you want to go from A to B, there are so many paths. So many paths is there. Like, so you are going in this way, A to B. Sometimes maybe you covered in this way. Sometimes maybe you are going firstly in back and then in this way. Then all these paths, path 1, path 2, and this one is path 3. In these 3, there is a no fixed direction. There is a no fixed direction, but you have covered some distance. There is a value of how many kilometers you have covered. You have kilometers, but not in particular direction. You have the value, but not with the particular direction. That's why these 3 paths are scalar. But if you choose a particular direction, in this case, if you choose a particular direction to go from point A to B in this manner, that you have to move straight. And this is your path 4. Then this path have a quality. Which quality is this? Shortest path. Shortest path. In this situation, this is only the one way. Only Sir, the please one. repeat. Okay. A to B जाने का जो रास्ता है वो काफी हो सकती है बेटा. उन सभी रास्तों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगी और वो होगी कि उन सब के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, फिक्स डायरेक्शन नहीं है. देखो जाना ए से था और पहुंचना कहा था बी था, बट आप नहीं पहुंच पाए. कैसे नहीं पहुंच पाए? कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन लेकर नहीं पहुंच पाए. अगर सभी को 3 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे और तीनों को कहा जाए कि आपने ए से बी जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ को भूल जाइए, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेना. उसके बाद आपको कह दिया जाए नाउ यू आर अलाउड टू मूव
फ्रॉम ए टू बी, बस आपने सीधे नहीं जाना है, तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे? मे बी कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब आपने ए से बी तो पहुंचे आप, बट नॉट विद द फिक्स डायरेक्शन, देन you have to cover some distance, but problem is what? No particular direction. मैग्नीट्यूड तो है, चीज तो है, किलोमीटर तो है आपके पास, बट क्या नहीं है? फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इन दिस वे जब आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इन द वेक्टर मैग्नीट्यूड यानी कि जो किलोमीटर है वो तो आपके होंगे ही, साथ में आपको ये भी पता होगा वो किस डायरेक्शन में गए हो। अगर आप तीनों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, तीन स्टूडेंट्स को, और कहा जाए ए से बी जाना है आपको, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना, तो कोई भी बच्चा इधर से उधर से दाएं बाएं से बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। तो उस सिचुएशन में आपको किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये कह दिया कि हम तो वेक्टर के हिसाब से चलेंगे या फिर हमने शॉर्टेस्ट पाथ कवर करा है, तो वो समझ जाएगा कि आपने फिक्स डायरेक्शन यानी सीधे गए होंगे आप, उसमें नो डाउट। जैसे कई बार हम बुलेट फायर करते हैं गन का यूज करके, तो बुलेट में सीधे ही जाना। कई चीजों में यूज होता है, देखो एरो यूज करते हैं, ठीक है, तीर धनुष होता है ना, वो चलाते हैं, वो भी सीधा जाता है। हालांकि वो कुछ टाइम के बाद नीचे नीचे होता हुआ चला जाता है, लेकिन हम तो सीधा ही लेते हैं ना उसको। स्ट्रेट, जब भी हम स्ट्रेट मूविंग थिंग्स की बातें करेंगे तो हम वेक्टर लेकर चलेंगे, लेकिन कई बार हम स्केलर को भी लेकर चलते हैं। स्केलर इज नॉट द वेरी गुड स्टडी ऑफ फिजिक्स, नॉट द वेरी गुड स्टडी ऑफ फिजिक्स, बिकॉज नीचे से ऊपर गए आप 10 मीटर, ऊपर से नीचे आए 10 मीटर, देखने वाला तो यही कहेगा 10 गया ऊपर या 10 आया नीचे, लेकिन फिजिक्स कहती है भाई नीचे से ऊपर जाना अलग बात है और ऊपर से नीचे आना अलग बात है। तो हमें तेज चीजें जितनी भी चल रही है उनकी डायरेक्शन जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, तभी हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देयर इज सो मेनी थिंग्स इन फिजिक्स, वन ऑफ द थिंग इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। नाउ कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अभी इसके ऊपर ज्यादा वो करना, बिकॉज देयर इज अ चैप्टर इन योर फिजिक्स, वेक्टर, what is vector, what is scalar, how many types of vector is there are so many things. ये तो अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। फर्स्ट यूनिट में आपको बहुत कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसकी 2 साल तक होती रहेगी इन +1 एंड +2। ये जितने भी फार्मूले आते जा रहे हैं या तो आपके कुछ पहले हो चुके हैं या आने वाले टाइम में। तो यू हैव टू लर्न इन दिस video or in this lecture only there are physical quantity, fundamental and derived. We are studying now derived quantity. What are their formulas and units, and why, how we can convert this unit into dimension. Only this thing is there. तो ये बीच में थोड़ा सा आ गया था, सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन है सर, ऐसे कैसे हो गया? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे यहाँ पर, तो आपने इसको भी मीटर में ले लिया, इसको भी मीटर में ले लिया, दोनों मीटर में ही आएंगे, बट डायरेक्शन इज नॉट देयर ना। डायरेक्शन के लिए जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, तो इसलिए हमने यूज नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया ना, आपके माइंड में डाल दिया कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, लिटिल बिट बता दिया है, तो जैसे ही आगे आएगा तो क्वेश्चन आपके माइंड में, आंसर आपको मिल ही जा रहा है। तो नेक्स्ट, आफ्टर वेलोसिटी, now the next thing is momentum. This is also the very important. हम जितना भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है, और उसको लेकर बहुत कुछ हो रहा है। और फिजिक्स आपको, जो ये +1 की फिजिक्स है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है +2 में। बाकी सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलती होगी कि भाई यही चीज आ गई दोबारा, लेकिन दिस इज द इनडायरेक्ट हेल्प फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ +2 सिलेबस। इनडायरेक्ट हेल्प का मतलब क्या है? कि आपको ये गट्स देगा कि सोल्व कैसे करना है, गट्स देगा कि टर्म के मतलब क्या है, और उसके बाद आपने क्या करना है, +2 पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस चीज का ध्यान रखना। ये डायरेक्ट नहीं आएंगे कोई भी टॉपिक, ये सब इनडायरेक्ट वे से आपकी हेल्प होगी।
तो नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये देखिए मैंने आपको खाली मोमेंटम भी बोल सकता था मैं अभी यहाँ पर। लीनियर वर्ड डाल के आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक हो गई, लीनियर का मतलब लाइन से तो नहीं है। यू आर थिंकिंग, यू कैन थिंक दिस वर्ड, क्या लीनियर का मतलब लाइन से तो नहीं है? तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये लाइन से ही। और इसी के साथ आपको आगे एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा और वो होगा एंगुलर। जितनी भी चीजें आप लाइन में सड़क पे दौड़ा रहे हैं, हवा में दौड़ा रहे हैं, वाइल फायरिंग बुलेट जा रही है, कुछ भी चीज है, सीधा मार रहे हो, पत्थर को फेंका, स्ट्रेट फेंक दिया, नीचे से ऊपर फेंक दिया, वो सब लीनियर है। बट इन केस ऑफ एंगुलर, when you rotate the stone like this, attached with the thread like thing, then you can rotate the stone in this way, in circular motion. How planets are revolving around the sun in a circle, in an orbit, then these formulas are not applicable in this situation. When an object, when a stone, when any kind of object is in rotatory motion, then physics formulae, linear formulae, you should have to convert into angle. Then you can find out the value of that in this situation, in that situation. Are you getting my point? तो सबसे पहले हमें लीनियर ही पढ़ना है, 4 यूनिट तक एंगुलर वर्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा सेकंड यूनिट में, अदरवाइज फिफ्थ यूनिट में आपको द रियल मीनिंग ऑफ एंगुलर यू कैन टेक। देखिए पहले ही बताई जा रही है बात है कि यही आने वाला है, तो इसका ये मतलब नहीं है हम अभी इनको समझते चले, फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, फोर्थ यूनिट में फिफ्थ यूनिट में आएंगे रोटेशन, सेकंड में लिटिल बिट बता देंगे, वही थोड़ा सा शक डालकर छोड़ दिया गया आपको। फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो कमी वाली चीज है वो क्या है, वो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जब हम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते तो हमें बस थोड़ा बहुत ही पहले से पता होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में फिजिक्स को लेकर पढ़ा है, बट काफी नई चीजें ये डाल देंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इन स्टार्टिंग। जैसे आपने कुछ बुक्स पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, 9th में आ गए या 8th में आ गए, तो वो कहते हैं कि 6th क्लास को रेफर करिए, 7th में करिए, ये हमने करा दिया पहले, लेकिन ये क्या कहता है आगे करिए, अब दे देगा कहेगा आगे पढ़िए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है, बच्चे में क्यूरियोसिटी आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन उसके क्वेश्चन उसके माइंड में ही रह जाते हैं, और सब कुछ हम स्टार्टिंग में एकदम से, इन्होंने देखो सारे पत्ते खोल देते हैं एक साथ इन दिस यूनिट, बहुत कुछ खोल देगा ये, नियर अबाउट 100 टू अबाउ फार्मूले है फिजिकल क्वांटिटी के, जो हम 1 बाय 1 करके पहुंच रहे हैं और अभी तक 5th वन पर पहुंचे, 5th फार्मूला है। तो ये देखिए 100 टू अबाउ पूरी फिजिक्स में आना है, 2 साल जो आपने पढ़ दी, और हम है कहाँ पर अभी, एट यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट पे 10 यूनिट इसके अंदर है +1 के अंदर, और 10 ही थी पहले +2 में, अब 9 रहेगी, तो 19 यूनिट का काम है ये सब, जो कि सिंगल यूनिट में आपको बता दिया जाएगा। देन हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल, कोई भी चीज आएगी उसको अभी से नहीं पकड़ना है सबको, आपने ये देखना है दीज आर योर टारगेट एंड यू हैव टू अचीव ऑल दीज थिंग्स इन 2 years। आपकी 2 सालों की प्लानिंग होगी, ये आ जाओ 1 by 1, आपने पहले सारे दुश्मन देख लिया आपने, उसके बाद क्या करा है, एक एक को पकड़ रहे हो, एक एक को स्टडी कर रहे हो। ओके, तो सब आएंगे ये फार्मूले अपने अपना बड़ा थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप लेकर, अच्छा रूप लेकर, सब कुछ बताया जाएगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, हाउ वन थिंग इज अफेक्टेड बाय अनदर थिंग, सब कुछ बताएगा। सब पढ़ना आपने इसको, यहाँ पर तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं,
linear momentum has the formula mass into velocity. Mass into velocity. Now, what is the unit of this linear momentum? kg. Velocity, क्या निकालना था velocity का unit? Meter per second. Now, you can write this unit in this way, kg meter per second. Now, convert this unit into dimension. Instead of kg, you have to use capital M. Instead of small m meter, you have to use capital L. And for second, you have to use capital T. And the power is -1. This is the dimension for linear momentum. In this way, the next one is acceleration. Little bit बता दूं, इसके बारे में बता दूं. Linear momentum, mass into velocity. Unit is this. कब लगेगी, किस सिचुएशन में लगेगी, थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं. थोड़ा सा सपोज ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m. जिसका मास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू से लिखते हैं. 10 kg की जो kg की ये है मास है इसका, कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का. ओके, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. ये इसका मास हो गया और ये हो गई वेलोसिटी. हाउ कैन यू कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम? बाय मल्टीप्लाइंग दिस 20 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस body, means momentum of this body. Suppose ये 20 kg का कोई ऑब्जेक्ट है. ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 20 kg. इसका मोमेंटम कितना होगा? 100 kg मीटर पर सेकेंड. आफ्टर सम टाइम ये इसको टकराएगा, जरूर टकराएगा ना. इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी कम है. देख सकते हो आप ये सब ना. Its speed is 5 meter per second, its speed is 2 meter per second. Then it will strike. जरूर होगा. चलो, आफ्टर स्ट्राइकिंग का रूट देखते. स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा? क्या 20 kg की बॉडी कम हो जाएगी या 10 kg की बॉडी बढ़ जाएगी? मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा टक्कर लगने के बाद? नो. एक बॉल दूसरी बॉल से टकराए, बॉल कम ज्यादा कोई हो जाती. बट देयर इज अ डिफरेंस इन दियर स्पीड. स्पीड में फर्क पड़ जाते हैं. कैसे? कैसे? इसकी स्पीड 5 मीटर नहीं रहेगी और इसकी 2 नहीं रहेगी. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी टक्कर लगने के बाद. क्या होगा? तो 10 वाली हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? 50 kg मीटर पर सेकेंड. दो चीजें समझे हम इससे. एक तो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, दूसरा कंजर्वेशन का भी कंसेप्ट. चलो, 20 kg वाले की क्या रहेगा? लगा लो थोड़ा. 60. तो कितना हो जाएगा? अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20, 100, 120, 60. ये भी कितना आ जाएगा? अब 60 kg मीटर पर. टोटल मोमेंटम कितना होगा यहाँ पर? 120. टोटल कितना होगा? 120. नंबर 1, जो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है उस पे दो चीजें आपने देखनी है. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. और सेकंड थिंग, इसका कंजर्वेशन होता है. क्या होता है?
कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये कम ज्यादा नहीं होगा कभी, जितना था, जितना पहले था। इनिशियली you have how much linear momentum, you have to add all the things, all add all the momentum of the thing, then after cycling you have to again totaling of that momentum, both will be same at every moment. So this is the conservation of linear momentum. But in linear momentum अगर आप ये स्टडी करना चाहते हो तो कोई बॉडी है जिसका मास है और वो वेलोसिटी से चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो उसके पास एक तरह से एक फोर्स है। क्या है? फोर्स है। मास और वेलोसिटी होना, देखो खाली वेलोसिटी होना और एक मास के साथ वेलोसिटी होना, दोनों में बड़ा फर्क है। वेलोसिटी में आप क्या पढ़ते हो? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक बॉडी है, ओ कोई चीज है, वो इतनी स्पीड से चल, लेकिन आप उस चीज की बात नहीं करते, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की बात करनी पड़ती। बड़ा फर्क है। एक छोटा सा पत्थर लिया, बड़ी स्पीड से आया और आपसे टकरा गया, क्या फर्क पड़ेगा? उसका मास कैसा था? मास कैसा था? देखिए समझिए इस चीज को, एक स्टोन की बात हो रही है, मास कैसा उसका? वेरी लेस। वेलोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। तो मोमेंटम कैसा होगा? देखते हैं। लेकिन अगर इस स्टोन की बजाय ट्रक हो तो, ट्रक आ रहा है, वेलोसिटी उतनी ही है जितनी इस पत्थर की थी, तो मास भी क्या है उसका? ज्यादा है। दोनों मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम इससे कम देंगे ज्यादा देंगे? तो आपका आंसर होगा ज्यादा। एक ट्रक और एक स्टोन, एक ट्रक या फिर एक साइकिल, दोनों सेम स्पीड से आ रही, दोनों सेम स्पीड से आ रही, लेकिन दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो आंसर ट्रक का। कभी आगे चलता हुआ तो हमें बड़ा हार्ट होता है, लेकिन अगर एक साइकिल वाला थोड़ी तेज भी मार दे तो बच जाते हैं हम, लेकिन ट्रक के केस में नहीं बचते। क्यों? कभी सोचा है अर्थक्वेक आता है तो पूरे घर को घेर देता है, वैसे आप पूरे घर को हिला दो चाहे ऐसे हाथों से 10-20 जने मिलके, तब नहीं गिरता। ऐसे कैसे? मोमेंटम ट्रांसफर होता है बेटा। क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफर। न्यूटन फर्स्ट लॉ लगती है। कैसे लगते हैं? सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर टॉपिक क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम ज्यादा होगा तो भाई फोर्स भी ज्यादा होगी। कैसे? अभी अभी बताया आपको, बड़ी चीज कि अगर थोड़ी वेलोसिटी भी रखोगे तो उसे तो मल्टीप्लाई ही होना है, और मल्टीप्लाई होकर सामने वाले की खैर नहीं है। एक ट्रक है, ट्रक से और बड़ी चीज ले लो, उसके साथ खड़े हो जाओ, वो थोड़ा सा भी ऐसे चल दी तो क्या हाल होगा आपका? ऐसी साइकिल है, भले ही बहुत तेज आ रही है, एक बच्चा बहुत तेजी से आया और आपसे टकराया, नो नो प्रॉब्लम, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अगर कोई भारी भरकम चीज आई, वो धीरे से भी आपसे टकरा गई, पता नहीं आपका क्या होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंजर्वेशन के लिए रहेगा कि जितना भी मोमेंटम है दाएं बाएं बच जाएगा वो, लेकिन खत्म नहीं होगा। After linear momentum, now the last thing is, last one today lectures, last thing you can say, acceleration. एक्सलेशन, इसको लेके बड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं स्टूडेंट। है सिंपल चीज ही, लेकिन फिर पता नहीं, या तो वो समझना नहीं चाहते इसको, या फिर आता ही नहीं है समझ में। स्पीड, एक्सलेशन कब होता है, क्यों होता है? तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसका स्पीड। स्पीड अगर कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, कम है या ज्यादा है, नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिक्रीजिंग, ING इज देयर,
और फॉर दिस इंक्रीज। जब किसी ऑब्जेक्ट की व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, देन यू कैन से हियर एक्सेलरेशन इज। गाड़ी चलाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं कुछ सेकंड के लिए, ब्रेक भी मारते हैं कुछ सेकंड के लिए, गाड़ी को स्पीड कम करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के वक्त जितना भी आपने टाइम लिया है वो पता होना चाहिए, जितनी भी आपने स्पीड बढ़ाई या घटाई है, इंक्रीज और डिक्रीज की है, वो भी पता होना चाहिए। उनकी रेशो को ही बोला जाता है एक्सेलरेशन। फार्मूला बताता हूँ मैं। वैसे बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन सही फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। स्पीड बढ़ाने में कितना टाइम लगता है आपको? कोई गाड़ी की, कोई बाइक की, ऐसे करा, हो गया, थोड़ा सा ऐसे घुमाया, कितने, 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, है ना? तो 3-4 सेकंड तक का काम होता है स्पीड बढ़ाने। फिर ब्रेक मारी, एकदम से तो नहीं मार दे, वो भी धीरे धीरे, उसमें भी 1-2-3 सेकंड, मतलब लिटिल टाइम